Hello dear, today we are going to discuss about DNA sequencing. DNA sequencing is used to determine the exact order of nucleotide within DNA molecule. We know about DNA molecule. DNA is made up of four types of nucleotide: adenine, guanine, cytosine and thymidine. We find out, we determine the order of these nucleotide within the DNA fragment by using DNA sequencing. There are following developments which make DNA sequencing easy. The first one is the discovery of restriction endonuclease. This enzyme is used to cut large DNA fragment into small DNA fragment. We cannot sequence large DNA fragments, so we cut this DNA into small DNA fragment by using this enzyme. The second development is the gel electrophoresis. Gel electrophoresis is used to separate different DNA fragments on the basis of their size. The third development is gene cloning and PCR. Both techniques are used to make millions of copies of our desired gene or DNA which we want to be sequenced by using any method. The fourth one is the reliable, easy and rapid DNA techniques are available which also contribute to make DNA sequencing easy. There are following, after this development, there are following methods which are used to sequence DNA. The first one is chemical sequencing, also known as Maxwell and Gilbert method. The second one is enzymatic sequencing, also known as Sanger method. The third one is pyrosequencing. Now we explore this method one by one. The first of all, we see the chemical sequencing method. The chemical method, the name indicates that the chemical reaction is used to cut the DNA at specific site. This method is given by Maxwell and Gilbert in 1977, and this method is based on chemical modification of DNA and subsequent cleavage at specific bases or site like adenine, guanine, cytosine and thymidine. The procedure of this method consists of following steps. The first step is the attachment of radioactive labeled dye with double stranded DNA molecule. We have this DNA fragment, double stranded DNA. We don't know about the nucleotide pattern within this DNA fragment, and we want to sequence this DNA and we want to know about the pattern of four nucleotides within this DNA. So first of all, we attached phosphorus 32 dye with this on either side 5' or 3' by using kinase reaction. After attachment of this dye with 5' of double stranded DNA, we cut this double stranded DNA by using restriction endonuclease. Restriction endonuclease cut this DNA into two unequal fragments, the large fragment and small fragment. इसके अंदर जो हमारे पास स्मॉल फ्रैगमेंट है या शॉर्ट फ्रैगमेंट है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और जो हमारे पास जो लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट है डबल स्टैंडर्ड इसको आगे हम फर्दर डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर यूज करेंगे. आफ्टर treatment of this double stranded DNA with the restriction endonuclease, we convert this double stranded DNA into single stranded DNA fragment by increasing the temperature. As we increase the temperature, denaturation start, double stranded DNA convert into single stranded DNA fragment. And here we have two double stranded DNA. The first one have radioactive label dye, and the second DNA fragment don't have any radioactive label dye. So we cannot use this DNA fragment. Labeled DNA जो है इसको आगे हम फर्दर डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर हम यूज करेंगे. After denaturation, the fourth step of this method is chemical modification. Here we use two types of chemical. We add piperidine plus along with dimethyl sulfate, which selectively attack on purine and cut the bases adenine and guanine. The second one is piperidine with hydrazine, which selectively attack on pyrimidine like cytosine and thymidine.
तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे। वी हैव 4 टेस्ट ट्यूब एंड ऐड केमिकल्स गुआनिन, chemical A and G, chemical C plus T respectively in 4 test tube। और इसके साथ हम इसके अंदर जो हमारे पास रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए फ्रेगमेंट है सिंगल स्टैंडर्ड, वो भी ऐड कर देंगे इन 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर। और इसमें रिएक्शन प्रोसीड लॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस 1 ब्रेक पर स्टैंड। हम इस रिएक्शन को इतना प्रोसीड करेंगे कि हर डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर एटलीस्ट 1 ब्रेक प्रोड्यूस करें। रैंडम ब्रेक्स जनरेट एंड लेबल्ड फ्रेगमेंट रिप्रेजेंटिंग आर पोजीशंस ऑफ इंडिकेटेड बेसेस। और इसमें हमारे पास डिफरेंट जो टाइप्स के जो सीरीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, जो कि आगे हमने इसको देखते हैं। जब हम इसको हमारे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उसको हम केमिकल के साथ ट्रीट करवाएंगे, और ट्रीट करवाने के बाद हमारे पास एक सीरीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेट। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्योंकि गुआनिन है, गुआनिन केमिकल गुआनिन ब्रेक करेगा डीएनए फ्रेगमेंट को आफ्टर गुआनिन, और इसके अंदर एडेनिन एंड गुआनिन केमिकल है तो ये ब्रेक करेगा डीएनए फ्रेगमेंट को आफ्टर एडेनिन एंड गुआनिन। और इसी तरह इस टेस्ट ट्यूब 3 के अंदर केमिकल सी ऐड किया है और ये डीएनए फ्रेगमेंट को ब्रेक करेगा आफ्टर साइटोसिन जो बेस है उसके बाद। और इसमें साइटोसिन प्लस थायमाइडिन है तो ये डीएनए फ्रेगमेंट को कट करेगा आफ्टर साइटोसिन एंड थायमाइडिन। तो अब हम इसको देखते हैं। सपोज हमारे पास ये डीएनए फ्रेगमेंट है, ये वाला जो हमने जिसको हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमने यूज किया। तो इसका जो सीक्वेंस है वो गुआनिन साइटोसिन थायमाइडिन एडेनिन साइटोसिन गुआनिन थायमाइडिन है एडेनिन है। और इसके एक साइड के ऊपर हमारे पास डाई अटैच है जो कि यहाँ पे हमने अटैच की थी काइनेज रिएक्शन के थ्रू। जो गुआनिन है, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटी फॉर गुआनिन टू कट डीएनए फ्रेगमेंट आफ्टर गुआनिन। तो देयर इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज, अब यहाँ पे फास्फोराइड अटैच है तो हो सकता है ये जो गुआनिन है ये यहाँ पे आके कट कर दे, तो इस तरह से हमारे पास ये फ्रेगमेंट बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ पर गुआनिन अवेलेबल है तो आफ्टर गुआनिन ये डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर देगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। तो इस तरह करके GCTA ACG हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो इसी तरह जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब 2 है इसके अंदर हमने केमिकल एडेनिन और गुआनिन यूज किया है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ये है कि हमने देखना कि जो फास्फोरस डाई जिस एंड पे हमने अटैच की है वहां पर जो फर्स्ट कट आएगा वो डीएनए आगे हम जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे तो वहां पे हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और जिसके साथ फास्फोरस डाई अटैच नहीं होगी उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए उसका इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वो लेंगे जिसके एक एंड के ऊपर फास्फोरस डाई अटैच हो और उसके बाद जो हमारा केमिकल जो हमने डिफरेंट यूज किए हैं और वो कट प्रोड्यूस करे। इसी तरह इसके अंदर एडेनिन एंड गुआनिन है तो एडेनिन एंड गुआनिन क्या करेगा कि जैसे ही एडेनिन आएगा तो उसके बाद ये डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर देगा। तो यहाँ पे एडेनिन के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे कट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये फ्रेगमेंट बन जाएगा GCTA, ठीक है। और इसी तरह और इसके बाद जो एडेनिन यहाँ पे है तो ये पूरा एक जो लॉन्ग फ्रेगमेंट है एज इट इज हमारे पास रह जाएगा। और इसके साथ हमने गुआनिन भी ऐड किया है तो गुआनिन अगेन वही कि ये यहाँ पे कट करेगा तो हमारे पास ये फ्रेगमेंट बन जाएगा। और गुआनिन इसके बाद यहाँ पर आ रहा है तो ये इसके बाद कट करेगा तो हमारे पास GCTA ये फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो जो एडेनिन है उसके हमारे पास ये 2 फ्रेगमेंट बनेंगे, ये वाला, और गुआनिन से ये 2 फ्रेगमेंट बनेंगे। हो सकता है कि जो A और G जो है ये मल्टीपल कट भी कर सकते हैं, लाइक एडेनिन जो है वो यहाँ पे कट करे और गुआनिन यहाँ पे कट करे। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा क्योंकि अब फास्फोराइड जो है इस फ्रेगमेंट के साथ अटैच है तो इसलिए ये वाला विजुअलाइज होगा। इसके बाद ये जो फ्रेगमेंट बनेगा इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसको आगे फर्दर इसको विजुअलाइज करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में।
अब साइटोसिन के अंदर क्या है कि साइटोसिन जहाँ पर भी होगा, यहाँ पे साइटोसिन है तो इसके बाद यहाँ पर ये कट प्रोड्यूस करेगा, तो इस तरह हमारे पास जो फ्रेगमेंट बनेगा वो जीसी और इसके साथ फास्फोडाई अटैच होगी। और सेकंड जो पॉसिबिलिटी वो ये है कि वो यहाँ पर कट करे और इस तरह हमारे पास जो फ्रेगमेंट बन जाएगा वो बन जाएगा GCTAC। तो इस तरह यहाँ पे जो केमिकल सी है ये दो तरह के फ्रेगमेंट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। और जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने केमिकल सी एंड टी ऐड किया है, ये यहाँ पर भी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। जो साइटोसिन है, साइटोसिन जीसी और जीसीटीसी, ये दो तरह के हमारे पास फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करेगा। और जो थायमाइडिन है ये जीसीटी और GCTACGT जो लास्ट वन है, ये दो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स या कट जो डीएनए वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह करके हमारे पास एक सीरीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर जनरेटेड बाय these chemicals which we add in a test tube during reaction mixture, where also we add DNA fragments along with phosphorus dye radioactive label attached. उसके बाद हम इस सारे जब हम इसको इतना टाइम दे देंगे कि हमारे ये जो केमिकल जो हमने इन टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड किए हैं ये डीएनए स्टैम्प जो उनके ऊपर एटलीस्ट ये 1 कट जो है वो प्रोड्यूस करे। उसके बाद हम इसकी जेल रन करेंगे। इसके लिए हम हाई रेजोल्यूशन एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो यूज करेंगे। हम इस जो हमारे पास ये जो रिएक्शन मिक्सचर है वी सब्जेक्ट दिस रिएक्शन मिक्सचर इनटू जेल इनटू इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ एक्रिलेमाइड हाई रेजोल्यूशन एक्रिलेमाइड जेल। और इसके अंदर जो हमारे पास जो इसके अंदर हम 4 वेल बना लेंगे और फर्स्ट वेल के अंदर हम जो केमिकल जो रिएक्शन जी है जिसके अंदर हमने केमिकल जी ऐड किया टेस्ट ट्यूब 1 का जो रिएक्शन मिक्सचर जो वो हम इस वेल के अंदर ऐड कर देंगे। और सेकंड वेल के अंदर जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब 2 है उसका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हम ऐड कर देंगे। और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है इसका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हम थर्ड वेल के अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ टेस्ट ट्यूब है इसका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हम फोर्थ वेल के अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है क्योंकि इसके इस साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अंदर जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स ऐड किए हैं ये सारे क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है जिसको हमने इसके अंदर ऐड किया है। अब ये जो डीएनए है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और इसके जो इस एंड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को रिपेल करेगा तो ये मूव करेगा टू द बॉटम ऑफ द जेल। तो यहाँ पे जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये बेसिकली साइज बेस्ड सेपरेशन है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये क्या करेगी, साइज बेस्ड सेपरेशन। अगर डीएनए का साइज ज्यादा होगा उसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ज्यादा होंगे तो वो जो वेल है इसके साथ ही कहीं फॉल करेगा। अगर डीएनए फ्रेगमेंट के जो अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कम होंगे तो वो अवे फ्रॉम द वेल ज्यादा क्विकली मूव करेंगे, रैपिडली मूव करेंगे टू द बॉटम। अब हमारे पास अगर एक डीएनए फ्रेगमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 5 हैं और एक के अंदर 10 है, जो 10 वाला है वो इसके करीब होगा और जो 5 वाला है वो ज्यादा क्विकली मूव करेगा टू द बॉटम साइड। तो इसलिए हम जब हमने इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड डाले तो जिस डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड था वो सबसे आगे होगा, जिसके अंदर 2 होगा वो इसके पीछे होगा। इस तरह एक ऑर्डर जो है, एक सीरीज जो है इस सीरीज के अंदर जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो फॉल करेंगे। जब हम इस जेल को रन करेंगे, जेल को रन करने के बाद हम इसको एक्सरे के अंदर जाके विजुअलाइज करेंगे और वहां पे हमें डार्क कलर के बैंड नजर आएंगे और जो बैंड होंगे उनको फिर हम रीड करेंगे फ्रॉम बॉटम
टू द टॉप। अब बॉटम में हम जब देखते हैं कि जो वेल जिसके अंदर गोवानिन केमिकल का हमने रिएक्शन मिक्सचर डाला है वहां पे हमें एक बैंड नजर आ रहा है, तो इट मीन जो फर्स्ट जो फ्रेगमेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियोटाइड है वो गोवानिन है। उसके बाद जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं टू द टॉप, तो हमारे पास यहाँ पे दो बैंड नजर आ रहे हैं, एक इस वेल के अंदर एक इस वेल के अंदर। तो अब यहाँ पे साइटोसिन है और यहाँ पे साइटोसिन प्लस थायमाइडिन है। अगर इसमें थायमाइडिन होता तो यहाँ पे बैंड नजर ना आता। तो इसलिए इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो साइटोसिन है। तो सेकंड वेल के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास जी के बाद सी आ जाएगा। इसी तरह हम जब थर्ड की इस टॉप की तरफ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक बैंड नजर आता है जो कि सी प्लस टी के अंदर है। अब ये जो बैंड है, अगर ये साइटोसिन का बैंड होता, न्यूक्लियोटाइड होता, तो फिर ये इस जगह पर भी हमें बैंड नजर आना चाहिए था, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे पास थायमाइडिन है। तो जो थर्ड नंबर पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे पास थायमाइडिन ऐड हो जाएगा। इसी तरह जब फोर्थ नंबर पे हम मूव करते हैं तो वहां पे हमारे पास एडेनिन आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे सी आ जाएगा और सिक्स नंबर पे हमारे पास जी सी टी ए सी जी आ जाएगा। ये जिस तरह यहाँ पे हमारे पास दो बैंड नजर आ रहे हैं, गोवानिन वाले में भी जिसके अंदर केमिकल डाला था और ए प्लस जी वाले में भी। तो यहाँ पे अगर एडेनिन ये न्यूक्लियोटाइड होता तो फिर हमें यहाँ पे ये बैंड नजर ना आता। अब ये क्योंकि दोनों साइड पे बैंड नजर आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ये गोवानिन न्यूक्लियोटाइड है, ना कि एडेनिन है। तो इस तरह करके हम इसको रीड करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब रीड करने के बाद हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस आ जाएगा वो आ जाएगा जी सी टी ए सी जी टी ए। ये वो सीक्वेंस है जो इस डीएनए का था और जिसको हमने, जो कि हमारे लिए अननोन था। तो हमने इस तरह बाय यूजिंग केमिकल मेथड वी डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद दिस डीएनए फ्रैगमेंट। इस डीएनए फ्रैगमेंट के अंदर जो जो न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर था उसको हमने डिटरमाइन किया बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स। तो इस तरह से जैसे जैसे हम इसमें जो शॉर्टर होगा वो सबसे आगे होगा, जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी बढ़ते जाएंगे, जो फ्रैगमेंट उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम जो है इसका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। Now we discuss about merits and demerits. मेरिट्स के अंदर ये कि हम वी कैन नॉट सीक्वेंस प्यूरिफाइड डीएनए विदाउट क्लोनिंग। हम क्लोनिंग के बगैर इसमें जो प्यूरिफाइड डीएनए है उसको हम सीक्वेंस कर सकते हैं। फर्स्ट इसका जो बेनिफिट है। द सेकंड वन इज this method is more accurate as compared to Sanger method. And demerits, we require radioactive labeling. In this method we require radioactive labeling, so this one is also a disadvantage of this method. The second one is because we use different chemicals that are hazards. Use hazards chemical, और इसके अलावा this method is also time taking, time consuming. The fourth one is large gel is required for large DNA fragment.
लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट के लिए हमें लार्ज जेल रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ केमिकल मेथड। इसके अलावा जो डीएनए chemical sequencing method is not widely used nowadays because there are many other more efficient and less hazardous sequencing methods are available. This method is now used for DNA fingerprinting and DNA structure study. तो जो फिंगरप्रिंटिंग है और डीएनए स्ट्रक्चर स्टडी है उसके अंदर हम इसको आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं है, हैजर्स केमिकल्स उसके अंदर हम यूज़ नहीं करते हैं, उसके जो डीमेरिट्स हैं वो बहुत कम है, तो इसलिए इस मेथड को इतना ज़्यादा रिकमेंड या प्रेफरेबल मेथड नहीं है। थैंक यू।